Good evening. I'm Melissa and I'm doing my MBA in ICFI University and I'm a Christian. There was a question regarding the food. In the Old Testament, it was said that we do not eat pork, but the New Testament, Jesus said that all food are fit to be eaten. So the question arises there. बहन ने सवाल किया है कि ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है कि सूअर का गोश्त मत खाओ, लेकिन ईसा अलैहि सलाम ने न्यू टेस्टामेंट में कहा कि सब खाना आप खा सकते। ये है बाइबल। मैं चैलेंज करता हूं आपको दिखाने के लिए बाइबल में कहां कहा है ईसा अलैहि सलाम ने कि सब खाना जायज है। देयर इज समथिंग लाइक अ रेड लेटर बाइबल सिस्टर। एक रेड लेटर बाइबल है जिसका मतलब जो कुछ ईसा अलैहि सलाम ने कहा है वो रेड इंक में लिखा है, लाल रंग से लिखा हुआ है। और अगर आप रेड लेटर बाइबल लेंगे और तहकीक करेंगे, बहुत कम चीज रेड में लिखी है बाइबल में। रेड मतलब ईसाई के स्कॉलर्स कहते हैं ये ईसा अलैहि सलाम ने कहा, जो ब्लैक में वो ईसा अलैहि सलाम ने नहीं कहा। जो सिस्टर जिक्र कर रही है वो कर रही है सेंट पीटर के बारे में, नॉट जीसस क्राइस्ट। ईसा अलैहि सलाम ने कभी भी नहीं कहा कि आप सब कुछ खाओ। एक ख्वाब आता है पीटर को, उस ख्वाब में उसने देखा कि सूअर खाना अच्छी बात है, इसलिए सूअर खाना सही हो गया। ईसा अलैहि सलाम क्या कहते हैं? ईसा अलैहि सलाम कहते हैं न्यू टेस्टामेंट में गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17 से 20 तक, Jesus Christ, peace be upon him, says in the Gospel of Matthew, chapter number 5, verse number 17 to 20, think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy, but to fulfill. And not one jot or tittle shall pass away until the law be fulfilled. And anyone who breaks one of the least commandments shall be called least in the kingdom of heaven. And whosoever shall keep the commandment and teach men to do so shall be called great in the kingdom of heaven. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. Sister, this is a verbatim quotation from the Gospel of Matthew, chapter number 5, verse number 17 to 20 of King James Version. I am speaking from my head, God-given computer. You can check it up. ईसा अलैहि सलाम कहते हैं थिंक नॉट दैट आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय द लॉ ऑफ द प्रॉफिट्स। मैं नहीं आया हूं पहले शरीयत को तोड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए, लेकिन मैं आया हूं उसको मुकम्मल करने के लिए, उसकी तस्दीक करने के लिए। और अगर आप एक भी नुक्ता पुरानी शरीयत का छोड़ते हैं तो आप जन्नत में कभी नहीं जाएंगे। इवन इफ यू ब्रेक वन जॉट और टिटल, you shall not enter the kingdom of heaven. Who said that? Jesus Christ, peace be upon him. एक भी चीज जो ओल्ड टेस्टामेंट में लिखी है अगर आप उसको तोड़ते हैं तो जन्नत में जाएंगे नहीं। वो तो सेंट पॉल और बाकी लोग आए और फिर बदलने की कोशिश की। Out of the New Testament, sister, there are 27 books in the New Testament. More than 50% have been written by Saint Paul. Saint Paul is a self-appointed apostle of Jesus Christ, peace be upon him. He hardly met him. Some scholars say he only met him once. So we have to follow the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, not of Saint Paul. हमें मानना चाहिए ईसा अलैहि सलाम का कहना, सेंट पॉल का नहीं। ईसाइयत के बारे में बात कर रहा हूं मैं, पॉलिनिटी के बारे में नहीं। सिस्टर, अगर आपको अच्छा ईसाई बनना है तो आपको सूअर का गोश्त नहीं खाना चाहिए। अगर खाएंगे तो जन्नत में नहीं जाएंगे। उसके पहले आपको इबादत करना चाहिए सिर्फ एक खुदा की, मानना चाहिए आखिरी पैगंबर में ईसा अलैहि सलाम ने कहा एक पैगंबर आएंगे जो आपको अच्छी बात समझाएंगे। You have to believe in Prophet Muhammad, peace be upon him. If you don't believe in Prophet Muhammad, peace be upon him, you are not a good Christian. You have to follow the last and final revelation, that is the glorious Quran, and then only can you enter heaven. Hope that answers the question, sister. माइक नंबर 5 से सवाल करें। Assalamu alaikum, sir. I am a Hindu. My name is Supriya Patil. My question is that I believe that there is only one God. But as we have been brought up like from the childhood that we have to worship in front of the idols. But
there's a good belief in my heart that there is no other God, but there is only one God. And as the Muslims believe, Islam says that there is only the one concept of God. So is it like different if we just bow down in front of the idols, but there's the faith in and belief in the heart that there is only one God? And where in the Vedas is it written that we have to follow the Quran, the Holy Quran? Because if we follow the Vedas, then we can't follow on the path of Islam. So where is it in the Vedas that we have to follow the Holy Quran, like to be in the similarities? बहन ने 2 सवाल किया है. पहला सवाल कि वो मानती है कि खुदा एक है, लेकिन वो दिल में मानती है एक, लेकिन करती है सिजदा मूर्ति को. तो क्या ये जायज है? मैं कहूंगा मेरे वालिद से, मैं आपको वालिद मानता हूं, ठीक है, लेकिन दूसरे आदमी को बोलता है तू मेरा पिता है. दूसरी औरत को कहता हूं कि तू मेरी वालदा है, तू मेरी माता है, और मेरी माता को मैं पूछता भी नहीं हूं, उसके मुंह देखता भी नहीं हूं, तो क्या मेरी माता मुझसे खुश रहेंगी? अगर आप मानते एक खुदा, तो सही खुदा की इबादत करो, सही खुदा को सिजदा करो. गलत खुदा की इबादत करना शिरक है. कुरान में लिखा है, सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में लिखा है कि अल्लाह ताला चाहे तो कोई भी गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन शिरक कभी भी नहीं माफ करेगा. ये वेद में भी लिखा है. वेद में लिखा है, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, वो खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है. प्रतिमा संस्कृत में उसकी मानी होती है सब कुछ के, फोटोग्राफ, स्कल्पचर, आइडल, सारे चीज को समेटते है प्रतिमा की मानी. उस खुदा का ना कोई अक्स है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई तस्वीर है. अगर आप बुत परस्ती करते हैं तो आप वेद के खिलाफ जा रहे हैं और कुरान के भी खिलाफ जा रहे हैं. आप सोचे मैं दिल में मानती हूं खुदा एक है, लेकिन गलत खुदा की इबादत कर रही है. अगर मैं कहूंगा कि मैं दिल में इज्जत करता हूं मेरे वालिदैन का, माता पिता का, ना उनका मुंह देखता हूं ना कुछ, दिल में करता हूं, लेकिन खिदमत करता हूं दूसरे किसकी, तो ये गलत है. हमें सही खुदा की इबादत करना चाहिए. दूसरा कोई भी गुनाह करे, शायद अगर खुदा चाहे तो आपको माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, जो वेद में भी लिखे है, बाइबल में भी और कुरान में. आपका दूसरा सवाल, वेद में कुरान का जिक्र है, और अगर है तो हम दोनों की बात कैसे मान सकते हैं, क्योंकि इख्तिलाफ भी है. बहुत अच्छा सवाल. मैं मानता हूं कि वेद और कुरान में यकसानियत भी है, इख्तिलाफ भी है. अगर आपके पास 10 पॉइंट्स है, 10 चीज है, 10 चीज में आप मानते, मैं 10 चीज में मानता हूं. अगर 5 चीजें मिलती जुलते हैं, तो जो चीज मिलती जुलते कम से कम उसके ऊपर तो हम अमल करें. जो इख्तिलाफ है बाद में डिस्कस करेंगे आप सही का मैं से. तालविला कलमितिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हमें यकसा है. तो मैं ये कहता हूं बहन से कि कम से कम जो वेद और कुरान में यकसा है उसके ऊपर तो अमल करो. पूरे वेद और पूरे कुरान पे आप अमल कर ही नहीं सकते. ये जो लोग इंटरफेथ डायलॉग करते ना कि हिंदुइज्म भी सही, हिंदू धर्म भी सही, ईसाई भी सही और इस्लाम भी सही, ये लोग को बेवकूफ बना रहे. अगर सवाल होता है कि 2 + 2 = 3, 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 5, ये कुछ मैथमेटिक्स है? ये जानते ही नहीं धर्म के बारे में. मैं ये कह रहा हूं जो यकसा है, तो आपके वेद में लिखा हुआ है कि एक आखिरी पैगंबर आएगा, अंतिम ऋषि जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, वो एक पैगाम को लेके आएगा. जो कुरान का जिक्र है वेद में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है. और वेद के स्कॉलर्स अक्सर कहते हैं कि वेद आज की तारीख में प्योर फॉर्म में नहीं है. बिब्लिकल स्कॉलर्स बोलते हैं बाइबल इज नॉट इन द प्योर फॉर्म. पूरा मुकम्मल तौर पे इसमें मिलावट है, वेद में भी मिलावट है. लेकिन स्कॉलर ये कहते हैं कुरान मजीद में कोई भी मिलावट नहीं है. अगर मैं आपको एक गिलास दूंगा पानी का और उसके अंदर एक कतरा डालूंगा गटर के पानी से और मिला लूंगा, आपको नहीं पता तो शायद पी लेंगे. आपके सामने जब डालूंगा तो क्या आप गिलास का पानी पीएंगे? पीएंगे? नहीं पीएंगे.
آپ جانتے ہیں کہ اس میں ایک قطرہ ملاوٹ گٹر کا پانی ہے, نہیں دیکھیں گے مل جائے گا, رنگ سے پتہ نہیں چلے گا, شاید پی لیں گے, جب پتہ لگ گیا تو کون پی گا. اسی طریقے سے یہ واحد کتاب ہے جو کبھی بدلی نہیں جا سکتی, کیونکہ خدا نے خود کہا اس کتاب کے اندر سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی قرآن شریف اور ہم اس کی حفاظت کریں گے, اور اس کی حفاظت خدا کریں گا, ہم چاہے تو بھی بدل نہیں سکتے. مائک نمبر 1 سے برائے کرم سوال کریں. I am Suresh Chopra from Scholar Batch 7. My question is there any reference or proof of Judgment Day in religions other than Islam? بھائی صاحب نے پوچھا کہ ججمنٹ ڈے کا ذکر ہے قرآن کے علاوہ باقی کتابوں میں. بالکل صحیح ہے. میں نے کل ذکر کیا تھا کہ ہندو مذہب میں بھی لکھا ہے, ہندو مذہبی کتاب میں وید میں لکھا ہے کہ امتحان ہوگا, پھر سورگ اور نرک میں جائیں گے. بائبل میں لکھا ہوا ہے, بائبل میں لکھا ہے کہ ڈے آف ججمنٹ کا. قرآن میں لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 میں کل نفس ذائقۃ الموت, ایوری سول شیل ہیو اے ٹیسٹ آف ڈیتھ. ہر نفس موت کو چکھے گا, لیکن فائنل ججمنٹ, فائنل حساب کتاب ہوگا آخرت میں. اور جو کوئی آگ سے دوزخ سے بچ جاتا ہے اور جنت میں جاتا ہے وہی سفلتا پاتا ہے اس زمین پر, اس دنیا میں. تو ہندو دھرم کتاب میں بھی لکھا ہے, بائبل میں بھی لکھا ہے اور قرآن میں بھی لکھا ہے. مائک نمبر 2 سے سوال کریں. My name is Sagar Suryakant Wagmare. My question to you is that the book sent by the God for that period, but where it is written that Quran is the last book sent by the God? میں صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ قرآن از دا لاسٹ بک سینڈ بائی گاڈ. بہت اچھا سوال ہے. باقی کتابیں صرف اپنے لوگ کے لیے بھیجی گئی تھی. میں بائبل کا ذکر کر چکا ہوں, گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 24, گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 to 6. قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کس کے پتا نہیں ہیں, لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے, آخری نبی ہے, اور اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے. کتاب نازل کرنے کے لیے ضرورت ہے ایک رسول کی, تو جب رسول ہی نہیں آئیں گا تو کتاب کیسے آئیں گے؟ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے قرآن میں کہ وہ آخری نبی ہے, آخری رسول ہے, اس کے بعد کتاب تو نازل ہو ہی نہیں. اٹس انڈرسٹوڈ, بولنے کی ضرورت نہیں. آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اسی لیے آخری نبی سارے انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. اور قرآن میں ذکر آتا ہے قرآن بھی ساری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے. باقی جتنی کتابیں ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ صرف بھیجے گئے تھے اپنے لوگ کے لیے, پیغمبر بھی اور وہ کلام بھی. لیکن قرآن مجید جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے تھے, قرآن بھی ساری انسانیت کے لیے. اس کا ذکر ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1, سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185, سورہ زمر چیپٹر نمبر 39 ورس نمبر 41. اور بھی حوالہ دے سکتا ہوں میں, لیکن یہ کافی ہے. مائک نمبر 3 سے سوال کریں. My name is Rakesh Bhosle. I'm a pharmacy student. My question is, can you please explain the creation of universe and life on the basis of Islam? بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ کین یو ایکسپلین دا کریشن آف دا یونیورس آن دا بیسس آف اسلام. یہ کائنات کس طریقے سے قائم ہوا اسلام کے نظریے سے. آج سائنس کیا کہتی ہے, پہلے وہ تذکرہ کروں گا میں. سائنس کہتی ہے کہ کائنات قائم ہوئی بائی بگ بینگ. پہلے یہ کائنات وہ تو پرائمری نیبولا ایک تھی, اس کے بعد ایک دھماکہ ہوا, اس کے بعد آئے گیلیکسیز, سٹارز, پلانٹس, سن, مون اور یہ زمین جس پہ ہم رہ رہے ہیں. اسے کہتے ہیں بگ بینگ. اور اس کے لیے نوبل پرائز ملا تھا کچھ سائنٹسٹ کو 40-50 سال پہلے. قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ الانبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں. اس میں لکھا ہے ڈو ناٹ دا unbelievers see اولم یر الذین کفروا, کہ
काफिर लोग नहीं जानते, अनबिलीवर्स नहीं जानते, अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्दा कानत रत्कम तकनाहुमा, कि द हेवन एंड द अर्थ, ये जमीन और आसमान एक थे और अल्लाह ने इन्हें सेपरेट किया, तफरका, इन्हें छुटा दिया, दे सेपरेटेड। तो कुरान की ये आयत जो है सूरह अंबिया की सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 बिग बैंग इन अ नटशेल है। तो जिस तरीके से कुरान जिक्र करता है 1400 साल पहले, साइंस आज नहीं, कल बोल सकते, यस्टरडे, 50 इयर्स बैक, 40 इयर्स बैक, 40 साल पहले, 50 साल पहले, आज साइंस मानती है किस तरीके से कायनात वजूद में है। और इसका जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में 1400 साल पहले है। मैंने एक तकरीर किया हूं, कुरान एंड मॉडर्न साइंस, कन्फ्लिक्ट और कंसिलेशन, और इसमें डिटेल में साइंस के बारे में बात किया हूं कि जो चीज साइंस आज जान रही है, कुरान में इसका जिक्र है 1400 साल पहले, क्योंकि कुरान इज फार सुपीरियर टू साइंस, क्योंकि कुरान का लेखक, ऑथर, इस जमीन को बनाने वाला है, वो हमसे, आपसे और हमसे और अच्छा जानता है। माइक नंबर 4 खवातीन के शोबे से सवाल करें। I'm Amreen, I'm a student. I would like to ask that the only difference between Muslims and Christians is that Christians believe that there is a relationship of a son and a father between Jesus Christ and God. So, and when we try to approach them regarding this, they do not believe. So what should we say? बहन का सवाल था, जब वो क्रिश्चियन से बात करते हैं, वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं और मानते खुदा के बेटे हैं, तो किस तरीके से उनके साथ हम बहस कर सके या उन तक पैगाम पहुंचाए। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल हैज गॉट सन्स बाय द टन्स। बाइबल में लिखा हुआ है कि आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे थे। बाइबल में बहुत से बेटे अल्लाह के, बाइबल में लिखा है आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा था, इसराइल अल्लाह का बेटा था, एफ्राइम अल्लाह का बेटा था। एंड बाइबल में लिखा है बुक ऑफ रोमन्स में चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 14 में, ऑल दोज आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड दे आर सन्स ऑफ गॉड। जो कोई अल्लाह की बात मानता है वो अल्लाह का बेटा है। तो कहने के लिए हम कहते हैं ना अल्लाह का बंदा है, अल्लाह मियां की गाय है, तो उस तरीके से कोई कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, हमें कोई एतराज नहीं उस सेंस में, उस सेंस में जिस सेंस में वो अल्लाह की बात मानता है, इसीलिए अल्लाह का नेक बंदा है। तो उस तरीके से बाइबल में कई अल्लाह के बेटे हैं, खुदा के बेटे, लेकिन ईसाई कहते नहीं नहीं नहीं, जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम खुसूसन बेटा है, ही इज द बिगॉटन सन। और वो कोट करते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16 में, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, हूसोएवर बिलीवeth in him shall not die but have everlasting life। बाइबल में और भी बिगॉटन सन है, लेकिन जब मैं पूछता हूं ईसाई से बिगॉटन की मानी क्या है, वो ईसाई जवाब नहीं देता है। क्यों? जो अंग्रेजी जानता है वो चुप हो जाएगा। बिगॉटन मतलब सायर्ड बाय गॉड। बिगॉटन मतलब ये बिगॉटन जो चीज है, जन्ना, जन्ना किसे कहते? वो जन्ना जानवरों की चीज है, सेक्स, इट बिलोंग्स टू द फंक्शंस ऑफ सेक्स ऑफ द लोअर एनिमल्स। ये खुदा के लिए कभी इस्तेमाल कर ही नहीं सकता कोई भी, इसीलिए कुरान में लिखा है ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है। और ये लफ्ज जो बिगॉटन है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स नंबर 16 में, अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन of the Bible, revised by 32 eminent Christian scholars, backed by 50 different corporate denominations। ये रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन एक नया एडिशन है, रिवीजन है बाइबल का, जिसने 32 माहिर ईसाई स्कॉलर्स मिलके इसको रिवाइज किए, इसको सुधारे, और 50 बड़े क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजर्स ने सपोर्ट किया। ये बाइबल सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन। इसमें ये स्कॉलर्स लिखते हैं कि ये लफ्ज बिगॉटन इज एन इंटरपोलेशन, इज अ कंकॉक्शन, इज अ फैब्रिकेशन, वो एक मिलावट है, उसे बाइबल के बाहर फेंक दिया।
तो अब रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन पढ़ेंगे बाइबल का, ये लफ्ज बिगॉटन है ही नहीं, क्योंकि कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है लम यलिद वलम युलद। सूरह इखलास में सूरा नंबर 112 आयत नंबर 3 में, वो ना किसी को जनता है ना किसी से जना है। तो जो वर्स के जरिए, जो लफ्ज के जरिए क्रिश्चियन लोग बात करते, वो लफ्ज क्रिश्चियन स्कॉलर्स कहते ये मिलावट है और बाइबल के बाहर फेंक दिए हैं। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहिब का ये बयान सुन लिया होगा और आप लोगों को पसंद भी आया होगा। आप लोगों ने बयान तफसील के साथ देख लिया। यकीनन अगर हम सोचें, दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों का लोग इबादत करते हैं। कोई चूहे की इबादत करते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो चूहे की इबादत करते हैं। अब ख़ुद अंदाज़ा लगाए कि चूहा क्या नुकसान दे सकते हैं, क्या नफ़ा आपको पहुंचा सकता है, लेकिन इनका अकीदा है और उसके मुताबिक, अपने अकीदे के मुताबिक इनकी इबादत करते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, उन्हें पुकारते हैं, इनका पूजा करते हैं। कितनी जहालत है लोग, और ये समझते हैं कि हम सही है, और ये समझते हैं कि हम अच्छे अमल करते हैं। इस तरह कोई ऐसे लोग हैं जो आग की पूजा करते हैं, आग से मदद मांगते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो बुतों की पूजा करते हैं, एक बेजान चीज़ जो उनके हाथ से बना हुआ बुत होता है, उनकी इबादत करते हैं और ये समझते हैं कि हम दुरुस्त है, ये हमारी जो है ना मदद करेंगे, हमें रिज़्क देंगे, औलाद देंगे। इनका ये अकीदा है। लेकिन एक बात याद रखना, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ महबूब दिन, अल्लाह के यहाँ मजबूत और मुअतबर दीन व इस्लाम है। जिसने भी इस्लाम को कबूल कर लिया वो कामयाब है। जिसने भी ये कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि नहीं है कोई इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के, नहीं है कोई इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है, आखिरी रसूल है, वो कामयाब है, वो बामुराद है, वो दुनिया में भी कामयाब होगा, आखिरत में भी इनके लिए कामयाबी है। तो जिसने भी इस बात की इकरार की कि अल्लाह एक है, इसकी यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है, तो फिर वो कामयाब है। अब जिसने भी ये कलमा पढ़ लिया, उस पर अल्लाह के अहकामात और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके ये लाज़िम हो जाते हैं। वो अल्लाह के अहकामात को फॉलो करेंगे, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ए नबी जी उन्हें कह दीजिए, अगर तुम ये कहते हो कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, फत्तबिऊनी, तो मेरे इत्तिबा कर लो, मेरे पैरवी कर लो, मेरे तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, अल्लाह भी आप लोगों के साथ मोहब्बत करेंगे। तो जो शख्स भी ये चाहता है कि अल्लाह उनके साथ मोहब्बत करे, अल्लाह उनके साथ प्यार करे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करे। कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक ऐसी किताब है कि जो शख्स भी इस किताब को सामने रखते हुए ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दे, इसकी ज़िंदगी पुरसकून बन जाएगी, उसकी ज़िंदगी के अंदर राहत आ जाएगी, वो बेचैन नहीं होगा, वो परेशान नहीं होगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि, सुन लो अल्लाह के ज़िक्र के साथ इत्मीनान है। सकून चाहते हो तिलावत करो, परेशानी से दूर होना चाहते हो तिलावत करो, अल्लाह के नाफरमानी को छोड़ो, अल्लाह के अहकामात को फॉलो करो, जुल्म से बचो, खयानत ना करो, झूठ ना बोलो, बदनज़री ना करो, किसी का हक ना खाओ, अल्लाह आपको सुकून अता फरमाएंगे। आज जो हम बेचैन हैं, ये हम अपने आमाल की वजह से बेचैन हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहों की सज़ा देते हैं, हम गुनाह करते हैं, बुरे आमाल करते हैं, इसके वजह से हम परेशान रहते हैं। तो इस वजह से हम अगर गुनाह करते रहेंगे,
ہم پریشان ہوں گے، سکون نہیں ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بیان سن لیا، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند بھی آ چکا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔